हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 13 काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु भूगोल का 13 चैप्टर। ठीक है, इसमें जो है हम वेदर और जो क्लाइमेट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, मौसम और जलवायु के विषय में। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए रहेगा जिनके सिलेबस में जो है वेदर एंड क्लाइमेट है। ठीक है, साथ में जो बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, classification of the climate. There is the most important here. The very fact of the measure weather element in the different part of the world, and there is the most important here. The every location of districts of the climate here. There is a number of different climates is large in order to easily understand, and the correspondent there is a larger variety of the climate of the world has been classified into a few major group, each having contain a common important characteristics here. Although there is several attempt has been to made by scholar to classify the climate of the world for the proper understanding of the major climate types, no single classification is a perfect, as a climate stand for the generalized and composite weather condition. However, the Greek Phares made in the first attempt to classify the world climates on the basis of the distribution of the temperature and insolation. They divide the world into 5 latitudinal thermal zone. The boundary of this zone are fixed on the basis of the angle at which their sun as a ray strike the earth. The following are the 5 thermal zone is the most important here. So here the 5 thermal zone is the most important here. There is a northern freeze zone, northern temperate zone, territory zones, southern temperate zones, and south freeze zone. There is a 5 zone is most important. Show in this diagram. There is a most important zone here. The first one, there is the thermal zone. Thermal zone is divided here. Territory zone. It is the largest and thermal zone. It is the largest of the thermal zone. It is cover almost half of the area of the earth as a surface. It is situated between there is a tropical of Cancer 23 1.5 north and tropic of Capricorns 23 1.5 south. The sun is a ray almost vertically throughout there here in this zone, and the midday sun is overhead to equator on the equator is on the 21st March and 23rd September. It is also is overhead to the tropical of Cancer on 21st June at the tropical of Capricorn is the 22nd December. The duration as of the day and the night are away equal. The 12 hours at each one of the equator, and then increase to the 13 hours 27 minutes at the tropics. The range of temperature is the lowest at the equator, and it is increasing to about to the tropics. There is the most important zone here. The next here, temperate zone. The temperate zone are one on the other side of the terrace zone.
The north temperate zone lies between to the tropics of Cancer, 23.5 north, and the Arctic Circle is a 66.5 north. The south temperate zone lies between the tropics of Capricorn, 23.5 south, and Antarctic Circle, 61.5 south. The sun is near to our head is a zone is a winter season. The night are longer and the day are the shorter and the vice versa in their summer. The difference between the duration of the day and the night increasing to about the poles. The maximum duration of the day in the summer and that of night is the winter in the polar circle is the 24 hours. When it is the summer is the northern hemisphere, it is the winter in the southern hemisphere and vice versa. The third point is a phase zone. Phase zone like their temperate zone, phase zone is also found in their both of hemisphere. The north phase zone is the lies between the Arctic Circle, 66.5 north, and the North Pole is a 90-degree north. The south phase zone lies between the Antarctic Circle, 66.5 south, and the South Pole is 90 degrees south. During the winter season, the sun does not rise above the horizon for almost 6 months. And these are the coldest region of the world. The surface remains permanently frozen under thick snow. The earth is divided into the 5 thermal zones on the basis of the distribution of the insolation and temperature. The 5 thermal zones are territory zone, northern and southern temperate zone, and northern and southern phase zone. There is an important point here. The next point here, climatic type. There is important here. The B here, climatic types. The concept of thermal zone is that thermatically and explained there is a distribution of solar energy over to the earth as a surface. As discussed earlier, there are several other factors besides the angle of the sun's rays, which influence the climatic of the place, keeping in view other factors responsible for the distribution and combined influence of the temperature and rainfall. The modern scientist has arrived to several classification of the climate and its types. The most widely used of system of climatic classification in its various modified form is that is Valdemar Kuiper is 1846 to 1940. It is based upon the temperature, precipitation, and their seasonal characteristics. The relationship of climate with the vegetation is also included with it. According to these schemes, the world has been divided into 5 climatic groups and they are further subdivided into the 30 climatic types that are following. There is the most important here, climatic group and climate type. The first here, tropical climate, hot air all season. Tropical rainforest, savanna climate, monsoon climate. Important here. The next here, dry climates. The dry climate, desert climate, and steppe climate. And the sea here, warm temperate, raining and middle altitude, rainy climate, mid-winter. The air types here, Mediterranean climate, China types climate, and Western European climate. The next year, humid middle latitudes climate, several winter. There is here taiga climate, cool east coastal climate, and there are continental climate. There is the most important here. The last 7 is a polar climate. There is important here. The polar climate here, tundra climate, and ice cap climate. There are types here. You will study the specific character of some of these climate types in their sequentially lesson dealing with the life of people in low altitudes, mid altitudes, and high altitude region of the world. And the main important point here, B. Köppen's scheme of climatic classification based on the temperature, precipitation, and the seasonal characteristics. That is important here. And according to these schemes, the world has been divided into 5 climatic groups and 30 climatic types. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक
जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, जलवायु का वर्गीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि जलवायु का हम किस प्रकार जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक ही है जलवायु का वर्गीकरण। कहते हैं मौसम के प्रमुख तत्व को विभिन्न प्रभाव अथवा पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्वरूपों के कारण संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इससे तो आप भली भांति परिचित ही हो कि संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाना स्वाभाविक बात है। अंततः जलवायु के प्रकारों की संख्या बहुत ही अधिक है। जलवायु के प्रकारों की संख्या बहुत ही अधिक है। संसार के इन विभिन्न जलवायु प्रकारों के आसानी से समझने के लिए उन्हें कुछ प्रमुख जलवायु समूह में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक जलवायु समूह में कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर कि संसार के इन विभिन्न जलवायु प्रकारों को आसानी से समझने के लिए उन्हें कुछ प्रमुख जलवायु समूह में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक जलवायु समूह में कुछ प्रमुख सामान्य विशेषता भी पाई जाती है। इधर भी वैज्ञानिक द्वारा संसार के प्रमुख जलवायु प्रकार के उचित अध्ययन के लिए उनके वर्गीकरण के कई प्रयास भी किए गए हैं। यानी वैज्ञानिक द्वारा संसार के प्रमुख जलवायु के प्रकारों को उचित अध्ययन के लिए उनके वर्गीकरण के कई प्रयास भी किए गए हैं, क्योंकि जलवायु मौसम के विभिन्न दशाओं के को जो है सम्मिलित और सामान्यतः रूप होती है। अंततः कोई भी वर्गीकरण आदर्श नहीं माना जा सकता। यानी कोई भी वर्गीकरण आदर्श नहीं माना जाता है। फिर भी यूनानियों ने तापमान और सूर्यताप के वितरण के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकरण करने का प्रथम प्रयास अवश्य किया था, क्योंकि यूनानियों ने जो है तापमान और सूर्यताप के विकिरणों के आधार पर संसार की जलवायु को वर्गीकरण करने का प्रयास काफ़ी जो है न्याय उचित था और उन्होंने संसार के 5 अक्षांशीय ताप कटबंधियों में बांटा और इस ताप कटबंधियों की सीमाओं का निर्धारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणों से बनने वाले कोण के आधार पर किया जा सकता है। और 5 जो है यहाँ पर कटबंधी निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन से 5 क्षेत्र पाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तट कटबंधी के अंतर्गत जो है एक आपको जो है यहाँ पर भूगोल का जो है मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको 5 जोन में बांटा गया है। यानी उत्तरी शीत कटबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटबंध, उष्ण कटबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटबंध, अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिण शीत कटबंध। यानी 5 भागों में जो इस ग्लोब को जो है विभाजित किया गया है। और इसकी मकर रेखा और कर्क रेखा की जो है पोजीशन आप देख सकते हो कि जो है 23/1/2 है और 23/1/2 जो है दूसरी है। और इसकी जो है उत्तरी शीत कटबंधीय में जो है 66/1/2 है और नीचे के क्षेत्र में 66/2 है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जो 90 डिग्री के एंगल के साथ बनती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण जो है जलवायु की विभिन्न दशाएँ पाई जाती है। हमारा जो पहला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्या है? इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही आता है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी ताप कटिबंध में उष्ण कटिबंध सबसे अधिक विस्तृत है। अगर देखा जाए ताप कटिबंध में उष्ण कटिबंध सबसे अधिक विस्तृत है और यह पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भागों को घेरे हुए हैं। यह पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग को घेरे हुए हैं। उष्णकटिबंधीय कर्क वृत्त यानी 23.1/2 उत्तर और मकर वृत्त जो है 23.2 दक्षिण के मध्य स्थित है। जैसे कि हमने मानचित्र में भी देखा था इस बात को। और इस ताप कटिबंध में वर्षा भर सूर्य की किरणें जो लगभग जो है लंबवत पड़ती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य की किरणें जो है सीधे लंबवत पड़ती है। उष्णकटिबंधीय के विस्तृत कालों में अर्थात 21 मार्च और 23 दिसंबर की तिथियों के जो है मध्य कालीन जो है सूर्य विषुवत वृत्त पर ठीक सिर के ऊपर ही होता है और सूर्य जो है 21 जून को कर्क वृत्त पर और 22 दिसंबर को मकर वृत्त पर भी लंबवत होता है। विषुवत वृत्त पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर ही रहता है, अर्थात 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन। दिन या रात की अवधि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर बढ़ती जाती है और यह कर्क या मकर वृत्त पर जो है बढ़कर अधिकतम 13 घंटे 47 मिनट तक हो सकती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि ये अगर देखा जाए तो कर्क या मकर वृत्त पर जो है बढ़कर 13 घंटे
47 मिनट तक हो जाती है और विस्तृत वृत्त ताप परिसर सबसे कम होता है और अन्य वृत्त जो है कर्क और मकर वृत्त की ओर बढ़ता ही चला जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधी दोनों और स्थित है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क वृत्त जो है 23/2 उत्तर से अंटार्कटिका वृत्त या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66/2 उत्तर के बीच स्थित है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति मकर वृत्त पर जो है 23/2 दक्षिण की ओर और अंटार्कटिका वृत्त या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर जो है 66.2 दक्षिण के बीच स्थित है, जैसे कि हम चित्र में भी भली भांति अध्ययन किए थे। और इस कटिबंध में सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं होता है, यानी ठीक कहते हैं सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर कभी नहीं होता है। और यहाँ शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है, यानी शीत ऋतु में रात की अवधि दिन की अवधि से लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु में इसकी विपरीत होता है। ध्रुवीय वृत्त की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता चला जाता है और ध्रुवीय वृत्त पर जो है ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि जो है सूर्य के प्रकाश की अवधि 24 घंटे होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट आता है शीत कटिबंध। देखिए शीत कटिबंध क्या है। शीतोष्ण कटिबंधियों के समान ही शीत कटिबंध भी दोनों गोलार्धों में है। उत्तरी शीत कटिबंध उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी 66/2 उत्तर और जो है ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर के बीच स्थित है। दक्षिण शीत कटिबंधीय जो है दक्षिण ध्रुव वृत्त 66/2 दक्षिण ध्रुव यानी 90 दक्षिण ध्रुव तक है। और शीत कटिबंधियों में सूर्य किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है और उनका जो है आयतन कोण बहुत छोटा होता है। और ध्रुव पर शीतम ऋतु में जो है 6 माह का दिन जो सूर्य के प्रकाश की अवधि होता है और शीत ऋतु में जो है यहाँ 6 माह की रात होती है। और यह कटिबंध संसार का सबसे ठंडा प्रदेश होता है और यह धरातल पर सदैव ही हिम की मोटी परत जो है जमी रहती है। यदि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सूर्य ताप एवं तापमान के वितरण के आधार पर पृथ्वी की 5 तप कटिबंधियों में बांटा गया है और 5 तट कटिबंधियों का नाम है उष्ण कटिबंधीय, उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तरी शीत कटिबंधीय और दक्षिण शीत कटिबंधीय। तो ये काफ़ी 5 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से भी, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जलवायु के प्रकार। कहते हैं ताप कटिबंधियों की संकलन सैद्धांतिक है यानी साइंटिफिक है और यह पृथ्वी तप पर जो सूर्य के वितरण मात्र का ही वर्णन करती है। यह आप पहले ही जान चुके हैं कि सूर्य किरणें के जो है आयतन कोण की अतिरिक्त और भी कई कारक किसी स्थान की जलवायु को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। तापमान और वर्षा के संयुक्त प्रभाव और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक वैज्ञानिक ने जलवायु प्रकारों के कई वर्गीकरण किए हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो उन्हीं को जाता है डब्ल्यू कोपेन को, जो 1846 से लेकर 1940 का जलवायु वर्गीकरण अपने विविध रूपांतरित प्रकारों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त एवं लोकप्रिय सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो इनका सिद्धांत था काफ़ी महत्वपूर्ण था। कोपेन का वर्गीकरण तापमान, वर्षा तथा उसकी ऋतुवर्त विशेषताओं पर आधारित थी। इसमें उन्होंने जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के बीच दृश्य संबंधों को भी जोड़ा था। कोपेन ने अपने वर्गीकरण का संसार के 20 जलवायु वर्गों और उनके भी 13 वर्गों में विभाजित भी किया था। और ये जलवायु वर्ग इस प्रकार थे। यहाँ पर आपको जलवायु वर्ग दिखाया गया है और दूसरे साइड जो है जलवायु प्रकार। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी सभी ऋतु गर्म। इसके अंतर्गत जलवायु के प्रकार जो होंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, सावन जलवायु, मानसून जलवायु। दूसरा जो होगा हमारे समक्ष शुष्क जलवायु। देखिए शुष्क जलवायु के अंतर्गत जो है मरुस्थलीय जलवायु, स्ट्रॉपी जलवायु पाया जाता है। और तीसरा जो है हमारे समक्ष नम शीतोष्ण जलवायु या मध्य अक्षांशीय नम जलवायु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसमें जो है भूमध्य जलवायु और चीन तृप्त जलवायु पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है ऋतु कम ठंडी वाला भी क्षेत्र आता है, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाए जाते हैं। देखा जाए तो जो हमारा अगला डी है आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसके अंतर्गत जो है टैगा जलवायु पाई जाती है, शीतल पूर्वी तट की जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ई पार्ट है ध्रुवीय जलवायु। यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसको ई समझिएगा, और ये 5 ही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत आता है तुंडा जलवायु, हिमच्छादित प्रदेश की जलवायु। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 5 है और इसके प्रकार जो है 13 है कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। कहते हैं कुछ जलवायु प्रकार की प्रकृति विशेषता आगे पाठ में निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश को उच्च अक्षांश में रहने वाले लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। ये टॉपिक इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है और साथ में चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी था मौसम जलवायु। ठीक है, एग्जाम व्यू से, और इसको अच्छे से आप समझ लेना, जितना हो सके समझोगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई कमेंट करनी है, तो कमेंट भी करने से अनभिज्ञ मत रहना। कुछ अच्छी बातें लिखना है तो अच्छी बातें लिखो, कुछ आपको गलतियां लग रही है तो उसको भी लिखो। कहते हैं जो व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सुधारता है वही महान कहलाता है। तो इस बात को मैंने नहीं निर्धारित किया है, मैंने इतना ही जाना है कि आप जितना हो सके खामियों के बताइए, जिससे मैं और आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला समय में जो है त्रिपाण सेंटर का वीडियो मिल सकेगा। ठीक है, आप कोई सोचते होंगे कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ एक ही क्लास के वीडियो के लिए अग्रसर है, तो आप ये जान के आपको होगा जानना पड़ेगा कि ये जो है 8वीं से लेकर जो है MA तक के बच्चों के लिए वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आप देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।